Yesterday we covered the theory part of this topic, which is curvilinear motion in terms of cylindrical components. आज हम थोड़ा सा इसी टॉपिक के हवाले से कुछ एग्जांपल्स और कुछ एक्सरसाइज के प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, and then we are going to discuss the theory as well as exercise problems of this topic, which is absolute dependent motion analysis of two particles. Probably next week we are going to cover the last topic, which is this one, relative motion analysis of two particles along with kinetics of a particle. तो हम kinetics जो है वो next week start कर देंगे इस chapter का आखिरी topic complete करने के बाद. Okay, just जब तक बाकी students join करें, quick review of what we did in yesterday's lecture. In order to develop the kinematics of a particle in terms of cylindrical components, we considered a particle which is traveling along a curved path as shown to you. At any particular instant, this particle is located at position P as shown to you here. We define first of all two coordinates. One is the radial coordinate, which is being defined as a vector starting from a fixed origin to that particle location. That vector or radial coordinate is being referenced or being designated by position vector r. Then we have the transverse coordinate, which is basically the angle between a fixed line and the r-axis at that particular instant. So this is the transverse coordinate theta. Then we define two axes, mutually perpendicular axes. One is this radial axis, which we have obtained by simply extending this r vector. The second one is the transverse axis, which is being obtained to be perpendicular to this radial axis at that particular instant, and its positive direction is designated by the unit vector u theta. The positive direction of ur is being designated by the unit vector ur. तो इस तरह हमने ये दो mutually perpendicular axes define की थी. At any particular instant, the position of this particle is defined by the position vector r. So this vector r was defined to you as rur, where this small r is basically the magnitude or length of this vector, and ur represents its direction. Then for velocity, we differentiated this vector in order to find out the velocity vector. Finally, after the derivation, the velocity vector comes out to be the velocity vector comes out to be v vector equal to vr vector plus v theta vector. That is, the velocity in terms of radial and transverse components or cylindrical components is going to be a vector sum of radial and transverse component. So vr is the radial component of velocity, which has a magnitude of r dot, and its direction is designated by the unit vector ur. Similarly, v theta represents the transverse component of velocity, which has a magnitude of r theta dot, and its direction is specified by the unit vector u theta. So whenever we talk about velocity in terms of cylindrical or polar coordinates, the velocity, although it is tangent to the curve at that particular instant, but since our axes are not being defined tangent to the curve, so we have resolved that velocity vector into its two components, the radial component of velocity and the transverse component of velocity, and the overall magnitude of velocity is going to be the vector sum of its radial and transverse components. Then for acceleration, we differentiated this velocity vector once again in order to find out the acceleration vector. After differentiating and then simplifying those equations, the acceleration vector in terms of polar coordinates or cylindrical coordinates comes out to be a equal to ar vector plus a theta vector. That is, the acceleration in terms of cylindrical components is going to be the vector sum of radial and transverse components. So overall, the acceleration is going to be the vector sum of radial and transverse components. The radial component of velocity would have a magnitude of r double dot minus r theta dot square, and its direction is specified by the unit vector ur. Similarly, the transverse component of acceleration would have a magnitude of r theta double dot plus 2r dot theta dot, and its direction is specified by the unit vector u theta. So the overall acceleration is going to be the vector sum of these two components. इस तरह आप acceleration का overall magnitude जो है वो determine कर सकते हैं. So these were the derivation which were done for a particle which is moving within a plane. So आपके पास ये terms आ रही थी position vector की, velocity vector की और acceleration vector की. However, if the particle is traveling in space, then these three additional terms, one each in position, velocity and acceleration, are going to be added in r, v and a. ये तीनों टर्म्स कहाँ से आई हैं? हम कहते हैं कि चूंकि पार्टिकल अब स्पेस में मूव कर रहे हैं, सो आपके पास ये जो हाइट है इस पार्टिकल की ये भी चेंज हो रही है. सो दिस z is being defined to you as a function of time, and this z is the same z axis
जो कि इससे पहले XYZ कोऑर्डिनेट सिस्टम में आपने जो है वो देखी थी। तो चूंकि ये एक्सेस फिक्स हैं, आपके पास z एज अ फंक्शन ऑफ टाइम है, उसको आपने पोजीशन वेक्टर में इंक्लूड कर लिया, z डॉट को आपने वेलोसिटी वेक्टर में और z डबल डॉट को आपने एक्सेलरेशन वेक्टर में ऐड कर लिया। तो अब आपके वेलोसिटी के भी 3 कंपोनेंट्स आ रहे हैं, एक्सेलरेशन के भी आपके पास 3 कंपोनेंट्स आ जाएंगे। सो दिस इज हाउ यू कैन डिफाइन द काइनेमेटिक्स ऑफ अ पार्टिकल इन टर्म्स ऑफ सिलेंड्रिकल कंपोनेंट्स। अगर आप सिर्फ r थीटा लेते हैं तो वो पोलर कोऑर्डिनेट्स आ जाते हैं, अगर आप z को भी इंक्लूड कर लेते हैं तो इट वुड बिकम सिलेंड्रिकल कंपोनेंट्स, आपकी 3 डायमेंशनल ये चीज हो जाएगी और आपके पास तीनों एक्सिस जो है वो इन्वॉल्व हो जाएंगी, r एक्सिस, थीटा एक्सिस एज वेल एज the z axis. Then we said that we can have two different set of problems relevant to this topic. The first set involves that both r and theta are defined to you as a function of time. So if both r and theta are defined to you as a function of time, you can easily calculate r dot, you can easily calculate r double dot. Similarly, theta dot and theta double dot can also be calculated easily, and then you can use these values along with r and theta in order to define the velocity and acceleration of that particle. However, the second set consists of the equation in the form r as a function of theta rather than as a function of t. So in that case, you need to use the in order to find out the relationship between r dot, theta dot, r double dot and theta double dot. So today we are going to solve some examples and problems relevant to both sets, और उसके बाद फिर हम जो है वो next topic start करेंगे. So this was just a quick review कि हमने कल क्या कुछ किया था. I hope कि कल की तमाम चीजें हर एक को क्लियर है, किसी को कोई डाउट तो नहीं है कल के लेक्चर के हवाले से? जी, किसी की कोई क्यूरी रिगार्डिंग यस्टरडेज लेक्चर, ताकि फिर हम आज के एग्जांपल्स जो है वो स्टार्ट करें. No, sir. Okay, so let us start with the first example of today's lecture, in which we are going to start with example 12-18. We have a rod which is being named as OA here. So this rod OA is rotating in a horizontal plane as shown to you in the figure, such that at any given instant, this theta, which is your angular displacement, it is defined to you as a function of time, which is theta equal to t cube. So this is the theta. Initially, this rod was located in this position when theta is equal to 0. So this was the original location of this rod when theta is equal to 0. This rod is rotating within this horizontal plane. So this is the horizontal plane जिसमें ये rod rotate कर रही है. And at any particular instant, this value of theta as a function of time is given to you as theta equal to t cube. At the same time, the collar B is sliding outward along OA so that R is given to you as a function of time again. R is given to you as 100t square. So initially क्या हो रहा है कि चूंकि ये rod यहाँ से start करी है, initially this collar was located at R equal to 0. Due to the rotation of this rod, this collar is sliding outwards, and at any particular instant this R जो कि rod की position है, जो कि collar की position है इस rod OA पे, that is given to you as a function of time to be equal to 100 t square millimeter. So both r and theta are given to you as a function of time. If in both cases time is in seconds, you need to determine the velocity and acceleration of this collar after a time interval of t equal to 1 second. So 1 second के बाद आपने determine करना है कि इस collar की velocity क्या है और साथ साथ इसकी acceleration क्या होगी. I hope that the question is clear to all of you. This question belongs to the set 1 of the problems, जिसमें both r and theta are given to you as a function of time, so that you can simply calculate r से r dot और r double dot आप निकाल लेंगे, इसी तरह theta से theta dot और theta double dot निकाल लेंगे, and then using the formula of velocity and acceleration cylindrical components वाले वो आप इस्तेमाल करते हुए velocity और acceleration का magnitude निकाल सकते हैं. So I hope that the question is clear to all of you. Yes, sir. Okay. Okay, so moving to the solution of this problem. Moving to the solution of this problem, since both r and theta are given to you as a function of time, so जिस तरह भी बात हुई थी कि r is given to us as 100t square, so we need to evaluate this r at t equal to 1. So putting t equal to 1 would give us the value of r to be equal to 100 millimeter. As far as this r dot is concerned, we are going to differentiate this r with respect to time once. So it would become 200t. Putting the value of t equal to 1 again would give us the value of r dot to be equal to 200 millimeter per second. Similarly, for r double dot, we are going to differentiate it once again with respect to time. So r double dot would comes out to be 200 millimeter per second square. So this is how from r you have determined r dot, from r dot you have determined r double dot. Similarly, theta, which is the angular displacement of this rod, it is again given to you as a function of time as theta equal to t cube. So at t equal to 1,
थीटा वुड कम्स आउट टू बी 1 रेडियंस। और रेडियंस को डिग्रीज में किस तरह कन्वर्ट करते हैं, आइडिया है कुछ आपको? 2 pi radians equal to 180 degree. Pi radians is equal to 180 degrees, या 2 pi radians is equal to 360 degrees. So you can use this relationship in order to relate radians and degrees. So 1 radian would be equal to 57.3 degrees. Then theta dot, since theta is given to you as a function of time, theta dot के लिए आप इस theta को differentiate once with respect to time, you will get 3t square. Putting t equal to 1 would give you theta dot to be equal to 3 radians per second. For theta double dot, you once again differentiate this with respect to time. So theta double dot comes out to be 60. Putting t equal to 1 would give you theta double dot to be equal to 6 radians per second square. Just एक क्वेश्चन मेरे ध्यान में, I don't know कि कल आपसे ये पूछा था मैंने या नहीं. What are this theta and theta double dot? ये हैं क्या चीजें फिजिकली? जी, anyone volunteer? What is this theta and theta double dot? उसका रेट ऑफ चेंज यानी कि The angular velocity and angular acceleration. जी सही कह रहे हैं आप. बेसिकली थीटा इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, सो थीटा डॉट इज एंगुलर वेलोसिटी एंड थीटा डबल डॉट इज एंगुलर एक्सेलरेशन. सो जब कभी आपसे एंगुलर वेलोसिटी एंगुलर एक्सेलरेशन की बात कही जाए तो बेसिकली वो थीटा डॉट और थीटा डबल डॉट की बात कर रहे हैं. तो क्वेश्चन में अगर वर्डिंग्स एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर एक्सेलरेशन की आई है तो इट मींस के वो थीटा डॉट और थीटा डबल डॉट का जिक्र जो है वो करना चाह रहा है. सो is basically the angular displacement. So you can say that theta dot is angular velocity and theta double dot is angular acceleration. Okay, so आपने किया क्या कि थीटा से थीटा डॉट और थीटा डबल डॉट की वैल्यूज निकालनी और उससे रेलेवेंट आपको ये वैल्यूज मिल गई. इसी तरह आर डॉट आर डबल डॉट की रेलेवेंट वैल्यूज आपको मिल गई एट टाइम t इक्वल टू 1 second. Okay, now as far as the velocity vector is concerned, since velocity vector in terms of r theta coordinate system is defined to us as r dot ur प्लस आर थीटा डॉट यू थीटा, तो आपके पास अब ये तमाम वैल्यूज आई हुई हैं. आर डॉट की वैल्यू 200 आई है, आर थीटा डॉट आपके पास 300 के बराबर है. सो ओवरऑल द वेलोसिटी वेक्टर वुड बी इक्वल टू 200 ur plus 300 u theta millimeters per second. So this is going to be the velocity vector. Since 200 and 300 are the components of this velocity vector, so अगर मैं आपसे overall इस velocity का magnitude कहूँ तो it is going to be 200 square plus 300 square whole under root. So overall the velocity would have a magnitude of 360.5 millimeters per second. As far as the angle of this velocity is concerned, आपके पास अगर इस फिगर को गौर से देखें तो आपके पास जो रेडियल कंपोनेंट आया है दैट इज 200 यानी पॉजिटिव आया है. ट्रांसवर्स कंपोनेंट इज 300 विच इज अगेन पॉजिटिव. सो रेडियल भी पॉजिटिव है, ट्रांसवर्स भी पॉजिटिव है. तो अगर मैं आर थीटा का वो चार कोऑर्डिनेट्स बनाऊं तो ये वेलोसिटी वेक्टर किस कोऑर्डिनेट में लाई करता होगा व्हेन बोथ आर एंड थीटा आर पॉजिटिव? First quadrant. फर्स्ट कोऑर्डिनेट. सो अगर मैं इसी फिगर के ऊपर ये चार कोऑर्डिनेट्स बना दूं जिसमें आपकी ये आर एक्सिस हैं, ये आपकी थीटा एक्सिस हैं, तो इट मींस कि ये पहला कोऑर्डिनेट जो आपका है इसमें यहाँ कहीं वेलोसिटी वेक्टर जो है वो लाई करता है. सो दिस इज द वेलोसिटी वेक्टर जिसके फिर आपने दो कंपोनेंट बनाए हैं वी आर एंड वी थीटा एंड बोथ ऑफ देम आर पॉजिटिव. सो द वेलोसिटी वेक्टर हियर लाइज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट. यानी अगर आप इसको 2D में देखें तो ये आपके पास आर है, ये आपके पास थीटा है, वेलोसिटी वेक्टर यहाँ कहीं लाई करता है. सो अब अगर मैं आपसे कहूँ ये एंगल से सिग्मा फाइंड आउट करें विच दिस वेलोसिटी वेक्टर इज मेकिंग विद रिस्पेक्ट टू द आर एक्सिस, तो वो एंगल सिग्मा कैसे डिटरमिन कर सकते हैं? tan करके सिंपली आप टेन इनवर्स, जी टेन इनवर्स क्या लेंगे? थीटा बना थीटा की वैल्यू बना v theta divided by vr. So v theta is 300, vr is 200. So this will give you the value of sigma. This sigma is basically the angle which this velocity vector is making with respect to the positive r axis. So that sigma comes out to be 56.3 degrees at this particular instant. So the same figure is shown to you here. थोड़ा सा इसको अगर हम रब कर दें, डिस्कार्ड कर दें और आपके पास ये ओरिजिनल फिगर आ जाएगी. तो ये अभी बात हो रही थी कि ये वो वेलोसिटी वेक्टर है जो कि फर्स्ट कोऑर्डिनेट के अंदर लाई करता है और आपके पास इसका एंगल जो है वो सिग्मा है विद रिस्पेक्ट टू द पॉजिटिव आर एक्सिस. तो आई होप कि ये वेलोसिटी वेक्टर और उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन हर एक को क्लियर है. इज देयर एनी क्वेरी रेलेवेंट टू दिस वेलोसिटी वेक्टर? क्लियर है सारी चीजें? Yes, sir. चलिए मेरा आपसे एक छोटा सा सवाल, ऑल्दो वो इस क्वेश्चन का पार्ट नहीं है लेकिन जस्ट आपसे एक क्वेश्चन कि दिस एंगल सिग्मा इज बेसिकली द एंगल व्हिच दिस वेलोसिटी वेक्टर इज मेकिंग विद रिस्पेक्ट टू द पॉजिटिव आर एक्सिस.
Can you tell me the angle which this velocity vector is making with respect to this reference line जहां से motion start हुआ था? ये velocity सर vector 90 में से माइनस कर लें 90 में से माइनस कर दें, 90 कहाँ से आ गया? सर वो 90 ऐड प्लस करें। चले इसको आसानी से समझने के लिए मैं करता क्या हूँ कि जस्ट इस वेलोसिटी वेक्टर को इस ओरिजिन के ऊपर जो है वो अगर मैं शिफ्ट कर दूं तो ये वो वेलोसिटी वेक्टर बनेगा और ये वो एंगल सिग्मा है जो कि अभी हमने डिटरमिन किया है। जस्ट फॉर सिंप्लिसिटी मैंने इसको उसी ओरिजिन के ऊपर शिफ्ट कर दी है इन द सेम सेंस उसके एंगल को बरकरार रखते हुए इस आर एक्सिस से। तो अब अगर मैं आपसे कहूं कि व्हाट इज द एंगल विच दिस वेलोसिटी वेक्टर इज मेकिंग विद रिस्पेक्ट टू लाइन, ओवरऑल एंगल कितना है, तो इट इज गोइंग टू बी इक्वल टू थीटा प्लस sigma, which 90. is theta is 57.3, sigma is 56.3, so it is going to be 57.3 plus 56.3. ये आपके पास वो overall आ जाएगा which this velocity vector is making with respect to the reference line जहां से motion आपका start हुआ था. So that angle would come out to be 113.6 degrees. Is it clear to all of you? यस चलें अब एक्सेलरेशन की थोड़ी सी बात करते हैं। एक्सेलरेशन का जिस तरह से पहले बात हुई थी, द फॉर्मूला ऑफ एक्सेलरेशन इज r डबल डॉट माइनस r थीटा डॉट स्क्वायर व्हिच रिप्रेजेंट्स द रेडियल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन एंड r थीटा डबल डॉट प्लस 2 r डॉट थीटा डॉट व्हिच रिप्रेजेंट्स द transverse component of acceleration. So by putting the values of r dot, r theta double dot, 2 r dot theta dot, the acceleration vector would comes out to be minus 700 ur plus 1800 u theta. तो ये आपके पास acceleration vector आ जाएगा in terms of radial and transverse component. This is the radial component of acceleration जिसको हम ar से denote करते हैं. This is the transverse component of acceleration जिसको हम a theta से जो है वो denote करते हैं. The overall magnitude of acceleration is going to be the sum of radial and transverse component vector sum. So 700 square plus 1800 square whole under root will give you the overall magnitude of acceleration vector. As far as the direction of this acceleration vector is concerned, आपके पास रेडियल कंपोनेंट जो है वो नेगेटिव आ रहा है, ट्रांसवर्स कंपोनेंट पॉजिटिव आ रहा है। सो कौन सा कोऑर्डिनेट होगा जिसके अंदर ये एक्सेलरेशन वेक्टर जो है वो लाई करेगा? सेकंड कोऑर्डिनेट। इट इज गोइंग टू बी सेकंड कोऑर्डिनेट। सो बेसिकली आपके पास एक्सेलरेशन वेक्टर ये वेक्टर है जो कि आपका सेकंड कोऑर्डिनेट में लाई करता है। अगर मैं इसको सिंपली 2D में देखना चाहूँ तो ये मेरे पास वो r और थीटा एक्सिस थी। इट मींस कि एक्सेलरेशन वेक्टर मेरे पास यहाँ कहीं लाई करता है इन द सेकंड कोऑर्डिनेट। सो इफ आई नीड टू फाइंड आउट this angle, say this angle is phi, so how can I determine this angle phi? फिर से वही tan करके Again it is going to be tan inverse the transverse component which is 1800 divided by the radial component which is 700. So this will give you this angle phi to be equal to 68.7 degrees. So basically this is the angle which this acceleration vector is making with respect to the negative r axis from in the clockwise direction. So आपको अगर मैं कहूँ r से इसका एंगल कितना है तो आप इसको 180 में से माइनस कर देंगे in order to get the angle of this acceleration with respect to the positive r axis. क्लियर है यहाँ तक? या किसी को कोई डाउट हो इस एंगल के हवाले से? ओके अब मेरा अगेन वही सवाल कि ये तो वो एंगल आ गए जो कि एक्सेलरेशन बना रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू द नेगेटिव आर एक्सिस। कैन यू टेल मी व्हाट इज द एंगल व्हिच दिस एक्सेलरेशन वेक्टर इज मेकिंग विद रेफरेंस टू द इनिशियल एक्सिस जहां से मोशन स्टार्ट हुआ था? आपकी आसानी के लिए मैं करता क्या हूं कि अगर मैं थोड़ा सा इस एक्सिस को एक्सटेंड करूं, ये मेरे पास अभी एक्सेलरेशन आई थी और ये मैंने एंगल फाई जो है वो डिटरमिन किया था। तो कैन यू फाइंड आउट दिस ओवरऑल एंगल, कितना एंगल ये एक्सेलरेशन वेक्टर बना रहा है फ्रॉम द रेफरेंस एक्सिस जहां से मोशन स्टार्ट हुआ था? एनीवन वॉलंटियर? व्हाट इज गोइंग टू बी दिस एंगल? सर पहले तो 180 में से 5 माइनस कर देंगे तो उसमें 57.38 डिग्री। ओके 180 में से मैंने 5 माइनस कर दिया, उसके बाद वो तो 180 में से 5 माइनस किया तो आपको ये एंगल मिला। यस सर फिर 57.3 ऐड भी कर दिया। ओके सो उसमें फिर हमने थीटा ऐड कर दिया। तो दिस इज गोइंग टू बी द ओवरऑल एंगल व्हिच दिस एक्सेलरेशन वेक्टर वुड बी मेकिंग विद रिस्पेक्ट टू द रेफरेंस एक्सिस जहां से मोशन स्टार्ट हुआ था। सो इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? या किसी का कोई क्वेश्चन हो किसी मैग्नीट्यूड या एंगल के हवाले से? क्लियर है सर? क्लियर है? आसान है चीजें, कोई ज्यादा मुश्किल कहानी तो नहीं है।
चलें नेक्स्ट वीक से हम पढ़ने में कुछ आने लगता है। नेक्स्ट वीक से हम कोशिश करेंगे कि नर्स ने अभी थोड़ा सा अलाउ किया है कि ऑनलाइन क्विजेस भी हम ले सकते हैं, ऑल्दो अभी इसकी एग्जैक्ट पॉलिसी नहीं आई, लेकिन मोस्ट लाइकली हम अगले वीक से थोड़े थोड़े से क्विजेस भी लेना शुरू कर देंगे, जिस तरह आपकी स्टैटिक्स में हमने क्विज नहीं लिए थे एमएस टीम्स एमएस उसके फॉर्म्स के साथ। तो टॉपिक्स में आपको बता दिया करूंगा और हर हफ्ते 2 हफ्ते के बाद हम एक आध क्विज ले लिया करेंगे, ताकि ये पता चलता रहे कि समझ सबको आ रही है या खाली आप यस सर ही कर रहे हैं। ठीक है, moving on to the next example, which is example 12-20. I hope कि बाकी इंस्ट्रक्टर्स ने भी कुछ आपसे शेयर किया होगा regarding those quizzes. यार कोई क्विजेस के हवाले से बात हुई है किसी से? यस सर, वो 2 इंस्ट्रक्टर्स ने शेयर किया था सॉरी। क्योंकि इनिशियली एट द स्टार्ट ऑफ द सेमेस्टर वंस द क्लासेस वर इन फेस टू फेस मोड, तो कहा ये गया था कि 2 इवैल्यूएशंस होंगी, मिड टर्म और फाइनल एग्जाम, बाकी असाइनमेंट्स होंगी, क्विजेस नहीं होंगे। लेकिन अभी नस ने थोड़ी सी पॉलिसी चेंज की है बिकॉज ऑफ दिस डीएल मोड, प्रोबेबली आपके क्विजेस भी अब इंट्रोड्यूस हो जाएंगे और शायद ओवरऑल वेटेज उनकी 20 to 30% हो। तो बजाय इसके कि हम आखिर में एकदम से सारे क्विजेस ने, हम अभी से क्विजेस जो है वो स्टार्ट कर देंगे प्रोबेबली फ्रॉम नेक्स्ट वीक ऑनवर्ड। ठीक है, टॉपिक्स मैं आपको बता दिया करूंगा जिसमें से क्विज होगा, और उसके हवाले से फिर हम एमएस फॉर्म्स के ऊपर उसी तरह जिस तरह स्टैटिक्स में क्विज होते थे उस तरह आपके क्विजेस जो है वो कंडक्ट हुआ करेंगे। Okay, moving on to example 12-20. You have a fork rod, which is this particular rod shown to you here. So this is a fork rod which is being grounded at one point. So अगर आप किसी भी rigid body को किसी एक point से ground कर दें, तो the only motion which is possible in that rigid body is that of pure rotation about that point. So this fork rod is basically rotating within the plane, और इसके इस rotation की वजह से ये जो cylindrical peg A है, it is basically moving in this slot which is shown to you. The function of this slot is given to you as r equal to 0.51 minus cos theta. यानी आपके पास ये जो slot है इसका r as a function of theta जो है वो known है। तो अब हम थोड़ा सा स्टेटमेंट देखते हैं। Due to the rotation of this fork rod, the cylindrical peg A travels along the slotted path, a portion of which is in the shape of a cardioid, for which r is given to you as a function of theta to be equal to 0.51 minus cos of theta, where theta is in radians. If the peg's velocity is given to you as 4 feet per second and its acceleration is given to you as 30 feet per second square, so the cylindrical peg have a velocity of 4 feet and an acceleration of 30 feet per second square at the instant when theta is 180 degrees. So at the instant when this theta is 180 degrees, ये इसकी पैग की लीनियर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन जो है वो आपको गिवन है। आपसे कहा क्या जा रहा है, यू नीड टू डिटरमिन द angular velocity and angular acceleration of this fork rod. So you need to basically determine theta dot and theta double dot at the instant when theta is 180 degrees. फिगर और क्वेश्चन हर एक को क्लियर है, या किसी को क्वेश्चन के हवाले से कोई सवाल, कोई क्यूरी, कोई डाउट? Okay, so this belongs to the second set of problem in which r is given to us as a function of theta rather than as a function of time. तो अब इस केस में हम करेंगे क्या कि हमें r as a function of theta के तौर पे known है, which is 0.51 minus cos theta. So r as a function of theta is known to us, which is 0.51 minus cos of theta. सबसे पहली बात तो ये कि we need to perform this analysis when theta is 180 degrees. So putting theta equal to 180 degrees, cos 180 कितना होता है? -1. -1. So 1 minus -1 वो 2 हो जाएगा। 2 into 0.5 will give you the value of r to be equal to 1 feet at theta equal to 180 degrees. Okay, r तो आसान था। Now in order to calculate r dot basically क्या होता है? r dot होता है dr by dt। जिस तरह कल बात हुई थी कि जब भी हम डॉट की बात करते हैं, डॉट represents the first derivative with respect to time. So r dot is basically dr by dt. But since हमारे पास r is defined to us as a function of theta, so we cannot directly find dr by dt. Rather, we are going to use chain rule in order to find dr by d theta into d theta by dt. तो हम इस chain rule का इस्तेमाल करते हुए dr by dt जो है वो determine करेंगे, since r is given to us as a function of theta rather than the function of time. So अगर मैं dr by d theta की बात करूं, so 0.51 माइनस cos थीटा, इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा क्या होगा? cos का डेरिवेटिव क्या होता है cos थीटा का? माइनस साइन थीटा। माइनस साइन थीटा। तो माइनस माइनस साइन जो है वो कैंसिल हो गए, और आपके पास dr बाई डी थीटा जो है वो एक तरह से 0.5 साइन थीटा जो है वो बचेगा। सो dr बाई डी थीटा आपके पास 0.5 साइन थीटा बचेगा। डी थीटा बाई डी टी आपके पास क्या होता है? वो आपके पास थीटा डॉट के बराबर होता है। तो इस तरह आपने चेन रूल अप्लाई करते हुए
आर डॉट जो है वो डिटरमिन किया. सो इट वुड बिकम 0.5 साइन थीटा इनटू थीटा डॉट. ये थीटा डॉट कहाँ से आ रहा है ये हर एक को क्लियर हो गया अब, क्योंकि अक्सर लोग एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इस चीज को भूल जाते हैं और सिंपली वो कहते हैं कॉस का डेरिवेटिव साइन है तो 0.5 साइन थीटा लिख के वो कहानी खत्म कर देते हैं. हालांकि यहाँ चूंकि आपके पास आर एज अ फंक्शन ऑफ थीटा है तो चेन रूल के तहत आपको डी थीटा बाई डी टी भी अपने इस इक्वेशन में शामिल करना है, विच इज बेसिकली थीटा डॉट, जिसको हमने यहाँ रिप्रेजेंट किया है. इज दिस स्टेप क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, ये sir. किसी को Yes. आर डॉट के हवाले से कोई शक? ओके, व्हाट इज साइन 180? 0. 0. 0. तो इसकी वजह से हमारे पास आर डॉट जो है वो 0 के बराबर आ जाएगा. सो पहले हमने आर की वैल्यू फाइंड की थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्रीज. उसके बाद हमने आर डॉट को इवैल्यूएट किया और थीटा 180 डिग्रीज पे हमने देखा कि आर डॉट की वैल्यू हमारे पास 0 आ गई है. ओके, नाउ कमिंग टू आर डबल डॉट. आर डबल डॉट क्या है कि आप इसी आर डॉट को एक और दफा डिफरेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम. सो आपके पास आर डबल डॉट क्या हो जाएगा? अब आपके पास आर डबल डॉट होगा एक तरह से डी ओवर डी टी 0.5 साइन थीटा इंटू थीटा डॉट. ये आपने इसका डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू टाइम. अब होगा क्या इसमें 0.5 को तो आप ऑटोमेटिकली बाहर ले आएंगे बिकॉज इट इज अ कांस्टेंट थिंग. सो आपके पास साइन थीटा एंड थीटा डॉट ये भी विद रिस्पेक्ट टू टाइम जो है वो चेंज हो रहा है, थीटा डॉट भी विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज हो रहा है. तो आप किस तरह इसको डिफरेंशिएट करेंगे, कोई आइडिया? Product rule, sir. आप प्रोडक्ट रूल लगाएंगे. वो प्रोडक्ट रूल क्या कहते हैं कि एक दफा आप थीटा डॉट को अगर कांस्टेंट रखें तो इसका डेरिवेटिव लेंगे, फिर दूसरी दफा इसको कांस्टेंट रख के थीटा डॉट का डेरिवेटिव लेंगे. सो बेसिकली आप प्रोडक्ट रूल जो है वो अप्लाई कर रहे हैं फॉर फाइंडिंग आर डबल डॉट. वो प्रोडक्ट रूल फाइंड करने के लिए एक दफा दोबारा देख लें हम कर क्या रहे हैं कि चूंकि हमने इस चीज को डिफरेंशिएट करना है, ये 0.5 जो कांस्टेंट था ये बाहर आ गया. आपने पहले थीटा डॉट को कांस्टेंट रखा. अब इस चीज को देखें, अगर आप साइन थीटा और थीटा डॉट को डिफरेंशिएट कर रहे हैं, पहले आपने थीटा डॉट को कांस्टेंट रखा. साइन का डेरिवेटिव क्या होता है? इट इज बेसिकली कॉस थीटा इनटू थीटा डॉट. वही चेन रूल आपने इस्तेमाल कर लिया. तो आपकी पहली टर्म ये कंप्लीट हो गई. फॉर द सेकंड टर्म आपने साइन थीटा को कांस्टेंट रखा, थीटा डॉट का डेरिवेटिव आपके पास थीटा डबल डॉट आ जाएगा. सो बेसिकली आपका ये आर डबल डॉट होगा जो कि आपने चेन रूल के तहत जो है वो डिटरमिन कर लिया. इट इज गोइंग टू बी कॉस थीटा इनटू थीटा डॉट स्क्वायर प्लस साइन थीटा इनटू थीटा डबल डॉट. इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू या किसी को कोई डाउट इस हवाले से? Yes, sir. क्लियर है? ओके, सो वंस यू हैव फाउंड दैट आर डॉट, अगेन साइन 180 आपके पास 0 आ जाता है तो ये वाली टर्म आपके पास 0 हो गई. cos 180 आपके पास -1 होता है. सो ओवरऑल दिस वुड बिकम -0.5 थीटा डॉट square. Now the velocity was given to you at theta equal to 180. The velocity have a magnitude of 4 feet per second. So velocity का magnitude किसके बराबर होता है? उसके रेडियल और ट्रांसवर्स कंपोनेंट को सम स्क्वायर करके सम करके अंडर रूट लें. सो यहाँ आपको r डॉट की वैल्यू पता है विच इज 0, r आपको पता है which is 1, theta dot is only unknown quantity. So once you solve it, the angular velocity of this fork rod would comes out to be 4 radians per second. Similarly, at the same instant, acceleration was given to you as 30 feet per second square. By formula, the acceleration is equal to AR square plus A theta square whole under root. ये तमाम चीजें आपको known है, सिवाय इसमें जो unknown quantity है वो आपके पास theta double dot है. So once you solve it, the angular acceleration theta double dot comes out to be 18 radians per second square. So this is going to be the angular velocity and angular acceleration of this fork rod at the instant when theta is equal to 180 degrees. Is it clear to all of you? कोई डाउट किसी Yes, का, sir. कोई क्वेश्चन जो आप पूछना चाहें? Clear, sir. क्लियर है? ओके, सो मूविंग ऑन टू द एक्सरसाइज प्रॉब्लम. थोड़ा सा हम एक या दो एक्सरसाइज प्रॉब्लम्स करते हैं, उसके बाद थोड़ा सा ब्रेक कर लेंगे. तो 12-169 आपके पास एक कार है which is traveling along a circular path having a radius of 400 feet as shown to you with a constant speed of 30 feet per second. So this car is traveling around this curved path with a constant speed of 30 feet per second. You need to determine the angular rate of rotation theta dot of this radial line and the magnitude of car's acceleration. दो चीजें आपको find करनी है. You need to find out the angular rate of rotation of this rod which is theta dot as well as the magnitude of car's acceleration. वो आपने जो है वो determine करनी है. Okay, किस तरह ये find की जा सकती है? कोई थोड़ा सा idea देंगे?
जी, anyone volunteer how we can find these two things, theta dot and a? सर हमें v पता है हम्म, तो उसके हिसाब से करेंगे कि r प्लस r थीटा डॉट। अच्छा चले चले, मुझे सबसे पहले तो एक बात बताएं, यहाँ आपको r गिवन है एज 400 फीट, सो व्हाट इज गोइंग टू बी r डॉट? वो खत्म हो जाएगा फिर। 0. 0 because it is given to you that this curve is pure circular curve having a radius of 400 feet. So since r is constant, so r dot and r double dot in this case are going to be equal to 0. ठीक है, अब आपको v जो है वो पता होता है, v का मैग्नीट्यूड की अगर मैं बात करूं तो इट इज गोइंग टू बी r डॉट स्क्वायर प्लस r थीटा डॉट स्क्वायर, ये होता है आपके पास वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड। इसमें r डॉट तो आपके पास 0 आ गया है, तो ये वाली टर्म 0 हो जाएगी। r आपके पास 400 है, वेलोसिटी आपको 30 फीट के हिसाब से गिवन है, तो द ओनली अननोन थिंग हियर इज थीटा डॉट। तो यहाँ से आपको थीटा डॉट की जो है वो वैल्यू मिल जाएगी, which comes out to be theta dot comes out to be 0.075 और यूनिट्स क्या होते हैं, रेडियंस पर सेकंड। तो इस तरह आपको थीटा डॉट की वैल्यू जो है वो मिल जाएगी। क्लियर है यहाँ तक, या कोई डाउट हो आपका? जी सर। Okay, then how we are going to find out the acceleration? वो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है रेडियल और ट्रांसवर्स कंपोनेंट का, लेकिन उसमें थीटा डबल डॉट भी आ रहा होता है इस फॉर्मूले में, अगर आपको याद हो। सो थीटा डबल डॉट क्या होगा यहाँ? सर वो 0 हो जाएगा। अच्छा, क्यों 0 होगा, मेरा अगला सवाल। अगर आप ये कहते हैं कि चूंकि आपके पास यहाँ थीटा डॉट 0.075 आया है तो थीटा डबल डॉट जो है वो 0 हो जाएगा, तो क्या ये जवाब सही है या कोई बेहतर जवाब हो सकता है? अच्छा और भी कुछ है? देखिए, मेरा आपसे सवाल है, मैं आपसे कहता हूं कि आपके पास, चलिए इस क्वेश्चन को साइड पे छोड़ दें, मैं आपसे कहता हूं कि v आपके पास से 3t है, ठीक है, t इक्वल टू 1 पे v की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी, ऐसे ही है। तो क्या मैं ये 3 देखते हुए ये कह सकता हूं कि वेलोसिटी इज कांस्टेंट, ऑल्दो बाय फंक्शन मुझे तो वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम नजर आ रही थी, लेकिन जब मैं टाइम का वो इंस्टेंट पुट करूंगा तो मुझे वेलोसिटी की वैल्यू कांस्टेंट मिल जाएगी उस इंस्टेंट के ऊपर। तो क्या ये लॉजिक में अप्लाई करूं और कहूं कि चूंकि थीटा डॉट मुझे 0.075 मिल रहा है जो कि एक कांस्टेंट है, तो इसके हिसाब से थीटा डबल डॉट मेरे पास 0 आना चाहिए। क्या ये No, लॉजिक sir. सही है? तो सही है, वैल्यू है, इसका फॉर्मूला नहीं है। ये तो सिर्फ वैल्यू है ना, तो क्या थीटा डॉट कांस्टेंट है या वेरी कर रहे हैं, मेरा अगला सवाल ये है। Theta dot constant. थोड़ा सा देखें, थीटा डॉट हमारे पास आ किस तरह है, ये वो फॉर्मूला है वेलोसिटी का जिससे हमें थीटा डॉट मिल रहा है। इसमें आर डॉट तो कांस्टेंट है यानी 0 है, आर भी आपके पास कांस्टेंट है, सर वेलोसिटी भी आपके एंगुलर पास कांस्टेंट एक्सीलरेशन है। नहीं है ना इस केस में, क्योंकि कार तो सेम ही वेलोसिटी से ट्रेवल कर रही है। जी, यही मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, ये जो वेलोसिटी का फॉर्मूला देखें, इसमें v भी कांस्टेंट है, r भी आपके पास कांस्टेंट है, तो इट मींस कि अगर सब चीजें कांस्टेंट है तो यहाँ से आपको थीटा डॉट भी कांस्टेंट ही मिलेगा, जिसकी वजह से आपको थीटा डबल डॉट जो है वो 0 मिलेगा। इज इट क्लियर टू यू ऑल? यस सर। ठीक है, तो चलिए आप थोड़ा सा साफ सोल्यूशन देख लेते हैं। हमने अभी बात की कि हमारे पास वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है विच इज दिस थिंग, यहाँ तमाम चीजें हमें नोन है, सो वंस वी पुट ऑल द वैल्यूज हमें वेलोसिटी मिल गई थी विच इज 0.075 रेडियंस पर सेकेंड, और चूंकि ये भी आपके पास कांस्टेंट है, आर भी आपके पास कांस्टेंट है, लिहाजा आपके पास थीटा डॉट भी कांस्टेंट आएगा, जिसकी वजह से थीटा डबल डॉट आपके पास 0 हो जाएगा। उसके बाद एक्सेलरेशन के लिए आपने रेडियल और ट्रांसवर्स कंपोनेंट्स एक्सेलरेशन के डाले, यहाँ तमाम चीजें आपको नोन है, तो वंस यू पुट ऑल द वैल्यूज the magnitude of acceleration would comes out to be 2.25 feet per second square. So this is going to be the overall magnitude of acceleration जिसकी हम बात करें, जो कि एज अ अननोन था, यहाँ आपको डिटरमिन करना था। So is it clear to all of you? कोई डाउट, कोई क्यूरी? क्लियर है सर। Clear है? So moving on to the final problem of this topic, which is 12-187. Again, you have a slotted arm AB which is rotating in a plane as shown to you, and due to rotation of this slotted arm, this cylindrical peg or sphere C is moving within the slot which is shown to you here, and the function of this slot is given to you as r equal to 1.5 theta. So r as a function of theta is given to you, which is r equal to 1.5 theta. आपसे कहा क्या जा रहा है कि in this case you need to determine
कि if the arm starts from rest when theta is equal to 60 degrees. So this arm starts from rest when theta equal to 60 degrees. You need to find out the radial and transverse components of velocity and acceleration of this pin once t equal to 1 second. और आपको angular velocity इस rod की given है, which is theta dot is given to you as 4t radians per second. थोड़ा सा सोच लें, उसके बाद मैं आप में से ही किसी से क्वेश्चन करूंगा. थोड़ा सा आप तमाम लोग इस हवाले से सोच लें, उसके बाद आपसे जो है वो क्वेश्चन आंसर थोड़ा से होंगे. ओके, अहमद दीन, कैन यू हियर मी? अपना माइक अनम्यूट कर दें और थोड़ा सा ये बताएं, r एज अ फंक्शन ऑफ थीटा हमें गिवन है विच इज 1.5 थीटा. r डॉट क्या होगा हमारे पास? अहमद दीन, आर यू हियर? अहमद मुर्तजा, सास सोहेल, जी सर. r एज अ फंक्शन ऑफ थीटा गिवन है, r डॉट क्या होगा? सर सबसे पहले चेन रूल से इसको भी टी के अंदर ले आएंगे. हाँ चलें, बनाना चाहें तो आप बना सकते हैं, वरना आप r एज अ फंक्शन ऑफ थीटा भी छोड़े तो इसमें ऐसा जो चेन रूल उस तरह अप्लाई नहीं होगा. r डॉट आपके पास सिंपली 1.5 थीटा डॉट आ जाएगा. अच्छा ओके, कॉस हो गया. इसमें कॉस और साइन तो है नहीं जिसपे आप वो चेन रूल अप्लाई करेंगे, तो सिंपली Yes, थीटा आपका थीटा डॉट हो जाएगा. सही. ओके, इसी तरह r डबल डॉट क्या हो जाएगा? मोहम्मद उमर, हाफिज अब्दुल्ला, सर 1.5 थीटा थीटा डबल डॉट थीटा डॉट. r डॉट 1.5 थीटा डॉट होगा, r डबल डॉट 1.5 थीटा डबल डॉट हो जाएगा. ओके, अब अब्दुल्ला लियाकत, किस तरह इसको सॉल्व किया जा सकता है? सर मुश्किल वाला पार्ट मेरे पे है. चलें, आप मुश्किल को आसान करके बता दें. इसका आइडिया नहीं है. नहीं आइडिया? ओके, एनी वॉलंटियर जो कि थोड़ा सा सोल्यूशन बताना चाहे, प्लीज रेज योर हैंड या अपने आप को अनम्यूट करके आप बता सकते हैं. इज देयर एनी वॉलंटियर के चलें r डॉट r डबल डॉट तो आ गया, लेकिन सॉल्व इसको किस तरह करना है? ओके, हमजा, कैन यू हियर मी? हमजा, मेरे ख्याल में ज्यादातर लोग जो है वो क्लास से लॉगिन होके उसके बाद मेरे ख्याल में नाश्ता करने चले गए. यस सर. सर वो थोड़ा माइक का मसला हो रहा था. चलिए मोहम्मद हमजा शाह, आप ये बता दें कि किस तरह सॉल्व किया जा सकता है. सर अभी तक सर ये वाला प्रैक्टिस नहीं किया सर. प्रैक्टिस करके सर पता चलेगा थोड़ा सा. चलें फिर हम डायरेक्टली सोल्यूशन देख लेते हैं, क्योंकि अभी किसी के समझ नहीं आ रहा. तो लेट अस मूव टू द सोल्यूशन और देखते हैं कि किस तरह सॉल्व किया जा सकता है. ओके, चूंकि हमें इस केस में जो थीटा डॉट है दैट इज गिवन टू अस एज अ फंक्शन ऑफ टाइम. तो थीटा डॉट हमें गिवन है, इससे हम बड़े आराम से सबसे पहले तो थीटा डबल डॉट कैलकुलेट कर सकते हैं. तो थीटा डॉट अगर 4t गिवन है, थीटा डबल डॉट मेरे पास 4 रेडियंस पर सेकंड स्क्वायर आ जाएगा. क्या मैं इससे थीटा कैलकुलेट कर सकता हूँ? कैन आई कैलकुलेट थीटा फ्रॉम दिस इक्वेशन? थीटा डॉट होता क्या है? थीटा डॉट होता है बेसिकली डी थीटा बाय डी टी. तो मैं जो हूँ वो इंटीग्रेशन की मदद से थीटा जो है वो डिटरमिन कर सकता हूँ. तो आपने इंटीग्रेशन में जो ये सवाल कराने का मेरा मेन मकसद है वो क्या है कि आंखें बंद करके इंटीग्रेशन की लिमिट 0 नहीं पुट कर देनी. आपको ऑलरेडी क्वेश्चन पे गिवन है कि दिस रॉड स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट व्हेन थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्रीज. ठीक है, तो आंखें बंद करके ये थीटा की लिमिट 0 पुट नहीं कर देनी, 60 डिग्रीज को रेडियंस में कन्वर्ट करना है बाय यूजिंग द सेम रिलेशनशिप पाई रेडियंस इक्वल टू 180 डिग्रीज. इस तरह आपको 60 डिग्रीज जो है वो 1.047 रेडियंस मिल जाएगा. तो आपने जो इंटीग्रेट करना है वो 1.047 से थीटा और 0 से t तक जो है वो इसको इंटीग्रेट करना है. इससे आपके पास थीटा एज अ फंक्शन ऑफ टाइम आ जाएगा. पुटिंग द वैल्यू ऑफ t इक्वल टू 1 would give you the value of theta to be equal to 3.047. थीटा डॉट आपके पास 4 रेडियंस पर सेकंड है, थीटा डबल डॉट 4 रेडियंस पर सेकंड स्क्वायर आ गया है.
R आपको 1.5 थीटा गिवन था, R डॉट 1.5 थीटा डॉट गिवन है, R डबल डॉट आपको 1.5 थीटा डबल डॉट गिवन है। तो एक तरह से आपको ये थीटा थीटा डबल डॉट R डॉट और R डबल डॉट की वैल्यूज मिल जाएंगी। द रिमेनिंग क्वेश्चन इज रियली सिंपल कि आपने रेडियल और ट्रांसवर्स कंपोनेंट निकालने हैं। रेडियल कंपोनेंट वेलोसिटी का R डॉट के बराबर होता है, ट्रांसवर्स कंपोनेंट वेलोसिटी का R थीटा डॉट के बराबर होता है। इसी तरह एक्सेलरेशन का रेडियल और ट्रांसवर्स कंपोनेंट जो है वो निकाल लिए। तो इस तरह आप इसको ओवरऑल जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। इसमें जो मेन पार्ट था या मेन ट्रिकी पार्ट था वो ये पहला पार्ट था कि किस तरह आपने थीटा को एज अ फंक्शन ऑफ टाइम बनाना है यूजिंग इंटीग्रेशन, और इसमें इंटीग्रेशन करते हुए ये इसकी लिमिट्स क्या रखनी है उसको थोड़ा सा ध्यान रखना है। बाकी पार्ट्स तो सिंपल फॉर्मूला में वैल्यूज पुट करने हैं और आपको रेडियल और ट्रांसवर्स कंपोनेंट जो है वो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के मिल जाएंगे। जी, एनी क्यूरी?